Friends, now we are going to discuss a process which is just opposite to the previous process what we studied. This process is integration and it is just opposite of the differentiation. Okay, so integration is nothing but a special type of summation, you can say. It is a special type of summation or addition. Okay, so and that is reflected in the symbol of the integration also, that as we write as summation and that is extended a bit and is written as integration like this. Okay, so the symbol for it is integration dx. This is how you write the integration symbol, and integration of a function is written somewhere here between this symbol and dx. Okay, dx stands for the variable with respect to x here to find the integration, and that's what variable is denoted by this dx. Okay, now we will see some basic formulas of integration, and then we will see how to apply them. Okay, so integration x to the power n dx, and that is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Also, along with this, a constant plus c is generally written. Okay, integration sin x dx. Integration sin x dx is minus cos x plus c. Integration cos x dx is equal to sin x plus c. Integration 1 upon x dx is equal to log x plus c. Integration e to the power x dx is equals to e to the power x plus c. Then integration cosec integration sec square x dx is equals to 10x plus c. Integration sec x 10x dx is equal to sec x plus c. Integration cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. Integration cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. Integration of constant dx is equals to constant x plus c dash. Okay, so these are some basic formulas related to integration which we generally apply. Now you must be thinking that why we have added this c, so we will be talking about that, why we added it. But before this I want to give you one idea about that. As I earlier told to you that the integration and differentiation are reverse processes. इसका मतलब ये होता है, अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और आपको एक फंक्शन मिला है ना, जैसे आपने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और आपको यह फंक्शन मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यह फंक्शन मिलना चाहिए. ओके, सो लेट अस सी दैट इज इट पॉसिबल और नॉट. तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन d by dx इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, d by dx ऑफ माइनस cos x plus c, और इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो यहां देखिए ये हो जाएगा d by dx ऑफ माइनस cos x plus d by dx ऑफ c. ओके, अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, d by dx ऑफ cos x जो होता है बाय फार्मूला होता है माइनस sin x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है c. ओके, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin x. देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x प्लस c क्या आ रहा है, sin x आ रहा है. जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने पे यह आता है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको sin x मिलना चाहिए, और वह मिलता है. इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वह दो अपोजिट प्रोसेसेस हैं. अच्छा, अब ये प्लस c क्यों आता है, इसका भी एक कारण आप समझ लीजिए. देखिए अगर मान लीजिए कि प्लस c नहीं था, ये नहीं था, तो अब ये डिफरेंशिएशन यहीं तक सीमित हो गया है ना, और हमें मिल तो sin x ही रहा है. अब मान लीजिए कि यहाँ
यहाँ पर माइनस कॉस एक्स के साथ में प्लस 1 था। अगर प्लस 1 था तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, d बाई डी एक्स ऑफ 1 करना पड़ता और अंत में उसका रिजल्ट तो 0 ही आता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो अगली बार आपको यहाँ पर 2 करके इसका डिफरेंशियल 0 करना पड़ता। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 100 होता, कुछ भी होता, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशियल तो 0 ही हो जाता। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहाँ पर माइनस cos x के साथ में मुझे एक नंबर ऑफ कांस्टेंट्स लिखना पड़ेंगे जो कि कुछ भी हो सकता है, और इसलिए जनरलाइज करने के लिए मैं उसको क्या लिख देता हूं, प्लस c लिख देता हूं। To generalize this, I have written plus c. It can be any constant. It can be 0 also, because 0 is also a constant. Okay, so this is why we write plus c here in the integration of any function. I hope it is clear to you. Okay, अब देखते हैं हम कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को। मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन करने को दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ -4 x to the power -3 -1 upon x minus 5 upon x plus pi by 4 sec square x minus 2। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है dx। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -4 x to the power -3 dx, फिर इसके बाद आप लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 by x dx, फिर आप लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ pi by 4 sec square x dx, फिर आप लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, अब आप देखिए -4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power -3 dx, -5 कांस्टेंट, इट इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1 upon x dx, then plus pi by 4 कांस्टेंट, इट इज आउटसाइड, and integration of sec square x dx, and then minus integration 2 dx। okay, अब इसको अगर हम करते हैं तो देखिए -4 x to the power -3, x to the power -3 का फॉर्मूला x to the power n+1 upon n+1 लगेगा, इंटीग्रेशन पावर फॉर्मूला, ये हो जाएगा x to the power n+1 upon n+1। okay, -5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx होता है log x, तो हमने लिख दिया log x, प्लस pi by 4 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x होता है 10x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx होता है 2x प्लस c। अच्छा, इस देखिए c हमने इन सभी के करस्पॉन्डिंग एक c लगा दिया है, अलग अलग c लगाने की वजह। अच्छा, इसको आप इस टर्म को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, -3 + 1 हो जाएगा -2, और यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 2 4, तो क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा 2 x to the power -2 -5 log x plus pi by 4 10x minus 2x plus c। This is what the integration of term is। अब अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx लिखा है उसको हमने 2x लिख दिया है, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अगर आपने लिखा है इंटीग्रेशन 2 dx, है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, और ये जो 1 dx है इसको आप लिख सकते हैं x to the power 0। अब देखिए इंटीग्रेशन x to the power 0 हो जाएगा x to the power n+1 upon n+1। ओके, और ये हो जाएगा 2x। So this is how you can write integration 2 dx as 2x। Clear? Let us do one more integration now। मान लीजिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन √x -1 upon √x, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब कैसे आप करेंगे इसे इंटीग्रेट, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपको दिया है तो आप करेंगे इंटीग्रेशन √x -1 upon √x, तो इसको लिख सकते हैं x to the power 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x to the power -1/2 dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा x to the power n dx, ये होता है x to the power n+1 upon n+1। ओके,
माइनस इधर आ जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये 3/2 को अपन लिख सकते हैं 2/3। ओके, माइनस 1 माइनस 1/2 1/2 होता है और 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2 x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1/2 होता है प्लस 1/2 x टू द पावर प्लस 1/2। ठीक है, so this is how you can solve this. Okay, so this is the integration of root x minus 1 upon root x. ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए कि आप इसे, अगर मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x की बात करता हूं, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x की बात करता हूं कि हमें डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x करना है, देखिए मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x करने का तरीका आप इसे लिखेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2, यहां आप पावर फार्मूला लगाएंगे n x टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 रूट x। सो d/dx ऑफ रूट x को आप लिख सकते हैं 1/2 रूट x। दिस इज व्हाट the differentiation of root x is, and you should remember this as a general formula। ये differentiation के फॉर्मूले जैसा आप इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक और फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है जिसे प्रोडक्ट फॉर्मूला कहते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा है वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है, वह भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला इस तरह है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रल। ओके, so this is what the formula is। अब इसे कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। मान लीजिए आपको एक, अच्छा इसमें एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसा हम डिफरेंशिएशन में लेते थे वैसा नहीं ले सकते हैं। आप अपने मन से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यहाँ नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक रूल यूज करना रहता है जिसे कहते हैं आइलेट रूल। ओके, यहाँ पर आप इस रूल को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड आइलेट रूल। अब ये आइलेट रूल ये होता है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट है, सबसे पहली प्रायोरिटी से सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसके लिए, फर्स्ट फंक्शन के लिए। फर्स्ट फंक्शन बनने के लिए जो है ये प्रायोरिटी लिस्ट है। मान लीजिए कि आपका फंक्शन अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे होगा। अगर इनवर्स नहीं है लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर नेक्स्ट होना चाहिए अलजेब्रिक। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसे बनाया जाएगा फर्स्ट फंक्शन, लेकिन अगर ये तीनों ही नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाने की प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर ये चारों नहीं है तो लास्ट प्रायोरिटी पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है किसके लिए, फर्स्ट फंक्शन बनने के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं आइलेट रूल, जो कि आपको याद रखना पड़ता है ना। अब अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ x sin x करना है। अब देखिए x sin x dx में x जो है वह अलजेब्रिक फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, ये लॉगरिथमिक नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आपको पहली प्रायोरिटी पे x को फर्स्ट फंक्शन देना होगा जो कि ऑलरेडी फर्स्ट फंक्शन ही है ना, और सेकंड जो है वह रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है और कौन सा सेकंड लेना है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x sin x, इंटीग्रेशन x sin x, x sin x। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम यानी x सेम
into integration of second function that is sin x dx minus integration differentiation of first function that is x into integration of second function that is sin x dx and whole integral that is dx. ठीक है, अब इसे सॉल्व करें. x इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x. देखिए डिफरेंशिएशन अगर आप x का करते हैं तो ये है x टू द पावर 1 और वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1. ओके, और ये हो जाता है 1 into x टू द पावर 0. x की पावर 0 1 होता है तो 1 into 1 1 हो जाता है. इसका मतलब है कि आपको एज अ जनरल रूल याद करना है कि डिफरेंशियल ऑफ x जो होता है वह क्या होता है? 1 होता है. तो यहां आप लिख सकते हैं 1 into sin x. इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x dx. ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. ओके, ये हो जाएगा माइनस x cos x plus integration of cos x is sin x. So this is what the integration of x sin x is. Okay, इस तरह से आपको product of two function in integration apply करना होता है. अब मान लीजिए कि ये जो है ये थोड़ा सा complicated हो गया. यही क्वेश्चन है ना? लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ x स्क्वायर sin x था. अगर यहाँ x स्क्वायर sin x है तो करा तो आपने एक पावर छोटी सी बढ़ा दी है, लेकिन आपने आपका टेंशन बढ़ा दिया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर करना होगा और यहाँ भी x स्क्वायर होगा. हालांकि ये x स्क्वायर आपको उतना परेशान नहीं करेगा जितना ये करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x cos x dx. ओके, अब ये 2x जो है तो यहाँ 2 तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, लेकिन अब ये जो है ये क्वेश्चन आसान नहीं रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये हो गया है x into cos x dx. x into cos x dx. ओके, अब ये x into cos x dx जो है इसको लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर into cos x. ओके, प्लस 2. अब यहाँ आपको फिर से x cos x यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाना होगा. तो जब आप लगाएंगे तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन सेम दैट इज x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा sin x माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x जो कि क्या होता है 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x इनटू dx. sin x dx. अब हम क्या करते हैं? अब हम लिख सकते हैं इसको इट इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2 x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x को लिख सकते हैं माइनस cos x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos x. सो दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म. अगर आपने इसको इस तरह से कॉम्प्लिकेट किया तो उस केस में ये ऐसा होगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू. फिजिक्स वॉयज में फिर से आपका एक बार और स्वागत है. आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में. देखिए इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट. तो यहाँ जो इंटीग्रल हम बात कर रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब यह होता है, देखिए इनडेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट जो कि निश्चित नहीं है. इनडेफिनेट है ना, जो अनंत तक जा रहा है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है ना, लिमिट्स नहीं है. लेकिन अगर हम बोलते हैं डेफिनेट निश्चित, इसका मतलब है कि वहां पर सीमाएं बना दी गई हैं, निश्चित है वह. ठीक है, तो अभी जो अपन ने इंटीग्रल इस वीडियो के पहले तक पढ़ा है वह कैसा है? अनिश्चित है. लेकिन अगर आपने सीमाएं क्या कर दी? फिक्स कर दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स कर दी, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेरिवेशंस में इसका इस्तेमाल आपको करना है, इसलिए मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ बेसिक, है ना. तो जैसे मान लीजिए मैं, देखिए इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ गई, ये समझ लीजिए, है ना. अब बस क्या है कि इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स लग जाती हैं तो उसको कैसे करना है, अब हम बात इसकी करने वाले हैं. तो देखिए अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3. अब ये क्या होती है? इसको कहते हैं लोअर लिमिट. क्या कहा जाता है बच्चों?
लोअर लिमिट, बहुत बढ़िया विवेक, लोअर लिमिट कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अपर लिमिट, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं लिखता हूं x टू दी पावर 2, ठीक है, प्लस 4, और बस मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इस लिमिट के अंदर करना है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या है, अवेलेबल है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, है ना, ध्यान से समझिए। अब आपको देखना यह है, आपको देखना यह है कि आप पहले तो लिमिट भूल जाइए कि लिमिट है भी। आपको क्या आता है वो कर दीजिए, क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जैसा करेंगे वैसा कर दीजिए। लिमिट भूल जाइए पर लिख दीजिए। भूल जाइए का मतलब यह है कि वो है लेकिन होने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। तो ये लिख दिया मैंने और ये लिख दिया एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, प्लस इंटीग्रेशन -2 to 3 4 dx। बताइए आया समझ में आपको? अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको लिख देता हूं, देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, है ना। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है x की पावर n + 1/n+1 पावर फॉर्मूला। लगा दूं मैं फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, तो आ जाएगा x की पावर 2 + 1, यानी कितना होगा बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय आएगा 3। क्लियर है इतना, x की पावर 3/3। और लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी -2 से 3, -2 से 3 एक्सक्यूज मी, प्लस करेंगे 4 और क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन 1 dx। इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन 1 dx अगर मैं करता हूं तो आपको पता है इंटीग्रेशन 1 dx होता है x, और लिमिट क्या आ जाती है, -2 से 3, -2 to 3, ठीक है। अब देखिए 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसको लिख देते हैं अपन x की पावर 3 लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 3, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा +4x लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 3। अब देखिए यहाँ तक आपने कुछ भी नहीं किया, आपने केवल और केवल क्या किया बच्चों, इंटीग्रेशन किया, है ना। व्हाट यू डिड इज इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा इसके बाद अब आपको लिमिट का काम करना है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन लिमिट्स, है ना। तो आइए चर्चा करते हैं लिमिट्स की। तो देखिए लिमिट्स की चर्चा कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ लिमिट रखता हूँ, कैसे रखते हैं समझिएगा। अपर लिमिट पहले रखते हैं, लोअर लिमिट बाद में रखते हैं, है ना। और याद रखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कहाँ रखा जाता है, x के प्लेस पे रखा जाता है, x की जगह रखा जाता है ना। तो रख दीजिए x की जगह रख दीजिए कितना, अपर लिमिट पहले, तो x के प्लेस पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा है ना, x के प्लेस पे मैं लिख देता 3, तो मैंने लिख दिया 3 और उसकी पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि मैंने x के प्लेस पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर मैं लिखूंगा माइनस, क्या लिखूंगा, माइनस, और माइनस क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होती है यहाँ पर बच्चों, ये है -2 और उसकी पावर कितनी है 3, आई बात समझ, उसकी पावर क्या है 3। फिर क्या करेंगे, फिर आएगा +4, ठीक है, क्या आएगा +4। अब मैं लिखूंगा क्या, अपर लिमिट आएगी 3। याद रखिए अपर लिमिट रखने के बाद में माइनस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कहा अपर लिमिट रखने के बाद में विवेक माइनस लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगाया माइनस और फिर लगाया लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है बच्चों, -2, क्या है -2। याद रखिए डजंट मैटर कि लोअर लिमिट माइनस में या प्लस में, ये माइनस साइन हमेशा लगेगा, ठीक है ना, ये माइनस साइन सदैव लगाना है। ये कर दिया आपने, अब लिमिट रख दी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1/3, 3 to the power 3, 3 3 9, 3 27, 27 -2 का क्यूब होता है -8, ठीक है। और आएगा +4, फिर आएगा 3 -+2 बराबर है, ये आ जाएगा 1/3, 27 + 8 +4 × 5, ये कितना आएगा 35, 35/3 +20, 20 या 60, 95/3,
3 इज द आंसर। आई बात समझ में? इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है इतना? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया लग जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से कैसे डील करते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ले लेता हूं, मान लीजिए मैं ले लिया इंटीग्रेशन -π/3, ठीक है, या π/6 to π/4 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, -π/6 to π/4। और मैं लिख देता हूं sin x -2, ये एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आपको, dx करें इसे। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसको करने का तरीका, इंटीग्रेशन sin x dx, लिमिट लिख दीजिए -π/6 से π/4, बताइए ऐसा समझ में। फिर करेंगे क्या, -2 इंटीग्रेशन 1 dx, फिर आएगा -π/6 से π/4। क्लियर है इतना, है ना। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। फॉर्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का, देखें अब क्या आता है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा -cos x, तो -cos x, है ना। और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, और ब्रैकेट के बाद लगाएंगे लिमिट्स। क्या आएगा, -π/6 और आएगा π/4, ठीक है। फिर लगाएंगे -2 और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बच्चों, x, और लिमिट हो जाएगी -π/6 से π/4। बताइए क्लियर है इतना, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट्स रखनी होती है। लिमिट्स कहाँ रखते हैं, x की वैल्यू पर लिमिट्स रखी जाती है। करें सॉल्व, माइनस, है ना, cos x, x की जगह क्या है बेटा, π/4 रख दिया। फिर करेंगे माइनस cos, और क्या लिखेंगे, -π/6, ठीक है। x की जगह लिमिट रख दी। अब x एंगल में है तो एंगल की जगह लिमिट रखेंगे। फिर आएगा -2, फिर रखेंगे क्या, π/4, ठीक है। फिर रखेंगे माइनस, और फिर रखेंगे -π/6। क्लियर है इतना, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रख दी, ठीक है। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos π/4 की डायरेक्ट वैल्यू है। अब यहाँ cos ऑफ -π/6 है, ये थोड़ा सा देखने वाला है। देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, अभी cos का आया है इसलिए cos का ही बताता हूँ, बाद में आगे जैसे जैसे और वैल्यूज आएंगी तो मैं बता दूंगा। देखिए याद रखिए cos ऑफ -θ जो होता है ना, वो cos θ होता है। क्या होता है, cos θ। cos ऑफ -θ क्या होता है, cos θ होता है। तो यहाँ पर अगर मैं, देखिए -cos π/4, अभी मैं cos π/4 ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ अभी। -cos ऑफ -θ क्या हो जाएगा, cos θ, यानी cos π/6 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आएगा -2, क्या आएगा, -2, और फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन करेंगे π/4 माइनस माइनस प्लस π/6। बताइए आया समझ में। अब क्या होगा, अब अपन वैल्यू रखेंगे, है ना। अब वैल्यू रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बड़े आराम से देखिए। cos π/4 कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, sin π/4 और cos π/4 दोनों इक्वल होते हैं। फिर माइनस cos π/6, π/6 कितना होता है, π/6 होता है 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2। कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। क्लियर है। फिर आएगा -2 π/4 π/6, इसको ले लेते हैं अपन, जैसे अपन ले लें 24, 4 6 24, 6 π प्लस 6 4 24, 4 π, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना, -2 ले लेंगे, √2, यहाँ आ जाएगा √2 माइनस √3, ठीक है।
और -2 यहाँ से हटा दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, तो 10 पाई बाय 12 यानी 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये आपका आ गया। चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यही आंसर है। एक बात याद रखिए कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लगाते, प्लस सी नहीं लगाते, क्योंकि क्या है, यहाँ लिमिट्स फिक्स्ड है। लिमिट्स फिक्स्ड है तो यहाँ कांस्टेंट आने की संभावना नहीं होती है, इसलिए नहीं लगाया जाता है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रल में संभावना होती है, यहाँ पर नहीं होती है। ओके, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता था, है ना। ये एक और कर लेता हूँ। 11th लेवल पर इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो मान लीजिए आपको अगर दे दिया इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r तक, है ना, ये दिया हुआ, ये लिमिट है इन्फिनिटी टू r, और करना है इंटीग्रेशन gm अपॉन x स्क्वायर dx का, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। gm अपॉन x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना। अब ध्यान से समझिएगा, फंक्शन किसका है, x का, तो यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रल, x की रिस्पेक्ट में, तो बाकी सब क्या होंगे, कांस्टेंट। तो देखिए ये gm जो है ये बाहर आ जाएगा। आप इसको ग्रेविटेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का ही है, पर अभी तो चलिए इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये कर दिया gmm इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर r तक, 1/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x⁻² dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, gmm इंटीग्रेशन x⁻² dx को क्या लिख सकते हैं, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है नहीं, और लिमिट क्या लगा दी, इन्फिनिटी से लेकर r तक। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। gmm -2 + 1 -1 होता है, माइनस मैंने बाहर ले लिया यहाँ, और x⁻−1 होता है, x⁻−1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x, तो इसको लिख दिया 1/x, और लिमिट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी से r। आगे बात करते हैं, अब लिमिट रखने की बारी आ गई, तो ये आ जाएगा क्या, -gmm, लिमिट रखिए, है ना, लिमिट रखेंगे x की जगह पर r, अपर लिमिट, तो ये आएगा 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो ये आ जाएगा -gmm/r, 1/∞ 0 होता है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कई प्रश्न हैं, लेकिन बेसिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।